STF والوں کی بے رحمانہ مار بھی اس کی قوت ارادی کو متاثر نہیں کر سکی تھی۔ اس کارخانے کے چوکیدار نے رشید کے نام سے کسی کو پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ وہاں کسی اور نام سے رہ رہا تھا۔ میں نے اپنے جوتے کی نوک سے اس کی پیشانی سے ہلاتے ہوئے اس کا نام پوچھا تو وہ چند ثانیوں کے لیے مجھے گھورتا رہا، پھر ہکلاتے اس نے اپنا نام صفتر بتایا۔ میں وہ نام پوچھ رہا ہوں جو تیرے باپ نے رکھا تھا۔ میں نے اس کی پسلیوں میں ایک ٹھوکر مار کر درست لہجے میں کہا۔ وہ ضرب رشید ایک گھٹی گھٹی گھراہٹ کے ساتھ سہ گیا۔ چند ثانیوں کے بعد وہ کمزور آواز بولا، تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ جہانگیر کہاں ہے؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ اوہ! اس کے ہلکی سی بساختہ آواز برآمد ہوئی۔ میں نے اسے اٹھایا ضرور تھا مگر بے ہوش کر کے اولڈ کلفٹن کی پارکنگ میں ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد اسے کون اور کہاں لے گیا یہ مجھے نہیں معلوم۔ تم جھوٹے ہو، اسے یہیں رکھا گیا ہے، میں نے اصرار کیا۔ نہیں صاحب، یہاں کوئی قیدی نہیں ہے۔ میں اپنی ماں کی قسم کھاتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اس بار رشید کا زخمی ساتھی بول پڑا تھا۔ تم پورا کارخانہ دیکھ لو، وہ یہاں نہیں ہے، رشید نے کراہ کر پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ رشید بہت سخت جان تھا، وہاں رک کر اس پر وقت برباد کرنا بے سود تھا۔ میں نے اول خان کے تینوں آدمیوں کو ہدایت کی کہ وہ زخمیوں کو پھاٹک کی طرف لے آئیں۔ اب کیا ارادہ ہے؟ اول خان نے راہداری میں داخل ہوتے ہوئے نیچی آواز میں سوال کیا۔ اب تک صرف 4 آدمی ہمارے مقابلے پر آئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہی اصل گرکے ہیں۔ یہاں موجود دوسرے لوگوں کا مجرمانہ سرگرمیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے پرخیال لہجے میں جواب دیا۔ ان دونوں کے بیان کے باوجود پوری فیکٹری کی تلاشی لینی ضروری ہے۔ یہاں سے جانے سے پہلے میں یہ اطمینان کرنا چاہتا ہوں کہ جہانگیر یہاں نہیں ہے۔ اول خان نے اسی وقت آپریٹرز پر اپنے عملے کے اراکین کو ہدایت کی کہ وہ سب تیزی سے پارٹی کے قریب جمع ہو جائیں۔ ہم راہداری پار کر کے دوسری طرف نکلے تو سلطان شاہ گولی سے زخمی ہونے والے پر اپنے دل کی بڑھاس نکالنے کے بعد اطمینان سے ٹہل رہا تھا۔ رشید اور اس کے ساتھی کے وہاں لائے جانے تک STF کا پورا عملہ پھاٹک کے قریب جمع ہو چکا تھا۔ اتنی بھاری نفری کو دیکھ کر وہ تینوں پریشان نظر آنے لگے۔ چوکیدار اپنی بے ہوشی کے سبب ہر فکر سے آزاد ہو چکا تھا۔ اس کا نام صفدر نہیں رشید ہے، میں نے دونوں خائف قیدیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس نے شہر کے ایک اہم آدمی کو اغوا کیا ہے۔ ابھی وقت ہے کہ سچ اگل دو۔ ابھی ہم چپے چپے کی تلاشی لیں گے، اگر مغوی یہاں سے برآمد ہوا تو یہی تمہاری کھالیں جسموں سے اتار لی جائیں گی۔ رشید کے مقابلے میں وہ دونوں کمزور اور بودے تھے۔ میری دھمکی پر وہ بری طرح رونے اور گڑ گڑانے لگے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی کا اغوا میں شامل نہیں رہے اور نہ فیکٹری میں کسی قیدی کو رکھا گیا ہے۔ رشید ایک طرف کھڑا خاموشی سے ان کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ فی الحال ان تینوں کو بے ہوش کر دو، میں نے سلطان شاہ کو ہدایت کی تاکہ ہم بے فکری سے پورے کارخانے کی تلاشی لے سکیں۔ وہ دونوں میرے قدموں میں گرنے کے لیے روتے ہوئے آگے بڑھے تھے کہ سلطان شاہ نے ان میں سے ایک کو درمیان میں ہی چاپ لیا۔ اس نے اپنے شکار کی بائیں کن پٹی پر اتنا زوردار کھونسا رسید کیا کہ وہ اپنی ہی جھونک میں زمین پر گر کر بے سوت ہو گیا۔ دوسروں کو میں نے ٹھوکر ماری، وہ چیخ کر سیدھا ہوا اور سلطان شاہ نے اس کی گردن دبوچ کر چند ثانیوں میں اسے بھی زمین بوس کر دیا۔ میرے قریب نہ آنا میں رشید نے لنگڑا کر پیچھے سرکتے ہوئے سلطان شاہ کو کوئی دھمکی دینے کی کوشش کی۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ اول خان اس کی پشت پر موجود تھا۔ اس نے بہت تیزی اور خاموشی سے اپنی رائفل کا آہنی کندہ رشید کی داہنی کن پٹی پر بجا دیا۔ وہ اپنی دھمکی مکمل کرنے سے پہلے زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ خسکم جہاں پاک، سلطان شاہ اپنے ہاتھ جھاڑتے ہوئے بڑبڑایا۔ اس کا وہ اس طرح رد عمل تھا، میں نے کچھ نہیں کہا۔ اول خان نے پوری فیکٹری کی تلاشی کے بارے میں اپنے آدمیوں کو بریف کیا اور وہ سرعت سے مختلف سمتوں میں پھیل کر غائب ہو گئے۔ سلطان شاہ کو بے ہوش قیدیوں کی نگرانی پر چھوڑ کر ہم دونوں عمارت میں گھس گئے۔ ہم نے چھت سے لے کر تمام دفتری کمروں کو چھان مارا لیکن وہاں کسی زیرو کا وجود نہیں تھا۔ پھر ہم دونوں نے برف خانے کا رخ کیا، جہاں کی یخبستہ فضا میں سانس سینے میں جمتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہاں اونگنے والے اکا دکا ملازمین نے خوفزدہ نظروں سے ہماری طرف دیکھا لیکن کسی نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ سرد خانے میں زیادہ رکنا محال تھا لیکن سرسری نظر میں یہ پتہ چل گیا کہ وہاں مختلف حالتوں میں مچھلیوں کے انبار اور چھوٹے بڑے پیکٹ چنے ہوئے تھے۔ وہاں کسی زی روح کا زیادہ دیر تک زندہ رہنا ناممکنات میں سے تھا۔ اول خان کے آدمی بھی ایک ایک کر کے بے نیل و مرام لوٹ آئے۔ اس پوری مہم کا ثمر رشید کی صورت میں ہمارے سامنے آیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ سخت جان اور ٹھیٹ شخص پر کچھ محنت کر کے بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے تھے۔ ان چاروں خبیثوں کا کیا کرنا ہے؟ اپنی نفری گن لینے کے بعد اول خان نے مجھ سے پوچھا۔ تینوں رشید کے ساتھی ہیں لیکن ہمارے لیے بیکار ہیں، انہیں یوں ہی کھلے آسمان کے نیچے پڑا رہنے تو رشید کو اسٹیشن 4 کی ہوا کھلانی ہوگی۔ میں نے اپنی رائے تھی۔ اول خان نے رشید کو لے جانے کی ذمہ داری اپنے آدمیوں کو سونپی اور ہم دونوں کے ساتھ وہاں سے واپس روانہ ہو گیا۔ اسے اندازہ تھا کہ رشید کے بھاری وجود کو پچھلی سیٹ پر ڈالنے کی صورت میں سلطان شاہ بھی آرام ہو جائے گا۔ رشید کی کہانی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کچھ دیر تک خاموشی سے سفر کرنے کے بعد سلطان شاہ نے کسی کو خاص طور سے مخاطب کیے بغیر سوال کیا۔
वो बदमाश और झूठा है, अव्वल खान भरा बैठा था। इसकी कहानी पर एतबार होता तो फिर इसे स्टेशन 4 ले जाने की क्या जरूरत थी। इसकी कमर से भारी बोझ बांधकर इसे ऊंचाई से फर्श पर अचानक खड़ा कर दिया जाएगा तो जरा सी देर में इसे नानी याद आ जाएगी। क्या होगा, जरा तफसील से बताओ, मैंने दिलचस्पी से पूछा। बगलों में बेल्ट डालकर इसे उठाया जाएगा और बुलंदी से बोझ समेत अचानक फर्श पर फेंक दिया जाएगा। यह ताज़ा और महफूज तरकीब है जो एक अमेरिकी सर्जन के मशवरे पर खतरनाक गैर मुल्की कैदियों पर कामयाबी से आजमाई गई है। अगर यह किसी सर्जन का मशवरा है तो इन झटकों के बहुत बुरे असरात हो सकते हैं। मैंने सोचते हुए कहा, हरनिया की बदतरीन तकलीफ भी हो सकती है। वही होती है, अव्वल खान ने पुरजोर लहजे में मेरी तायद की। रशीद 3rd डिग्री की इस तरकीब का पहला शिकार होगा। तजर्बा कामयाब रहा तो मैं इस बारे में जलाल को जरूर बताऊंगा। वो मुजरिमों से बाज पर उसके मामले में कानूनी हदूद का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। मैंने कहा, हरनिया एक कुदरती बीमारी है, कोई भी बेरहमाना तशद्दुद साबित नहीं कर सकेगा। 12 बजे उसके स्टाफ ने भी काम शुरू किया होगा। पता नहीं इनके क्या नताइज रहते हैं। अव्वल खान ने याद दिलाया। मैंने अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डाली तो 12:15 बजे थे। जलाल से 1 बजे के लगभग ही कोई जामिल रिपोर्ट मिल सकती थी। गाड़ी में एक मरतबा फिर खामोशी छा गई। तीनों अपनी अपनी जगह किसी सोच में डूबे हुए थे। कासिम फिशरी से जहांगीर के बरामद न होने से हमें गहरी मायूसी हुई थी। हसन अस्क़ाई से गुजरते हुए एक लम्हे के लिए मुझे ख्याल आया कि हम कुछ देर के लिए घर पर रुक जाएं, लेकिन सलमा का ख्याल आते ही मैंने वो इरादा तर्क कर दिया। वो बेचारी रशीद की तलाश से बहुत आस लगाए बैठी थी। उसे ये जानकर सख्त सदमा होता कि रशीद के हाथ आ जाने के बावजूद जहांगीर की बाजियाबी की कोई सूरत पैदा नहीं हो सकी थी। हम दोनों ने वक्त पर रात का खाना खा लिया था, लेकिन अव्वल खान अपनी मसरूफियात के बिना पर भूखा रह गया था। हर तरह से फारिग होने के बाद भूख उसे सता रही थी। मेरे यहाँ पर उसने गाड़ी उस्मानिया रेस्टोरेंट के करीब रोक ली। अंदर की खुनक फिजा में मुख्तलिफ खानों की मिली जुली इश्तिहा अंगेज खुशबुएं चकरा रही थी। हमने कुछ इजाफी आर्डर दे दिया। खाने का आगाज लज्जत अंगेज था। हम तीनों के हाथ इस वक्त रुके जब मेज पर कुछ भी बाकी नहीं रहा था। खाने के बाद चाय का दौर अव्वल खान की कमजोरी था। हम शिकम शेर होकर रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो फिजा कुछ खुनक हो चुकी थी। स्टेशन 4 की चेक पोस्ट पर पता चला कि अव्वल खान के आदमी कैदी समेत वापस आ चुके थे। होटल पर रुकने की वजह से हमें वहां पहुंचने में खासी ताखीर हो गई थी। अव्वल खान ने दफ्तर में पहुंचते इंटरकॉम पर अपने किसी मातहत से बात की और बताया कि रशीद को रास्ते ही में होश आ गया था। इसके आदमियों ने अपने ठिकाने पर वापस आते ही रशीद पर तशद्दुद का नया हरबा आजमाने की तैयारियां शुरू कर दी थी। वह हमें अपने साथ लेकर तेजी से उस बैरक की तरफ चल दिया जहां कैदी से बाज पुरुष होनी थी। रशीद के बदन पर एक बुनियान और अंडरवेयर के सिवा कुछ नहीं था। कासिम फिशरीज में उसकी अच्छी खासी मुरम्मत हुई थी। इस तवाज़े के निशानात उसके बदन के खुले हुए हिस्सों पर नुमाया थे। अंदरूनी ज़रबात के साथ उसके जिस्म पर मुतअद्दिद खुले हुए जख्म भी थे जिनसे बहने वाला खून जमकर स्याही माइल रंगत इख्तियार कर चुका था। इसके दोनों हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। दोनों बगलों के दरमियान से नवाड़ का पट्टा गुजार कर एक रस्सी से बांध दिया गया था। इस रस्सी का दूसरा सिरा एक चरखी पर से होकर फर्श तक आया हुआ था। कमरे में रशीद के अलावा मजीद 2 आदमी थे। अव्वल खान के वहां पहुंचते ही इनमें से एक ने फर्श पर पड़ी हुई चरमी बेल्ट उठाई और जरा सी देर में वेट लिफ्टिंग में इस्तेमाल होने वाली 2 वजनी आयनी प्लेटें इस बेल्ट की मदद से रशीद की कमर से बांधी गई। रशीद इन हरकतों से बहुत हरासान नजर आ रहा था, लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल मजबूर और बेबस था। एहतजाज और उछल कूद के बावजूद वो खुद को इस बोझ से बचाने में कामयाब नहीं हो सका। मुझे अव्वल खान ने तशद्दुद के सरबे के बारे में रास्ते में ब्रीफ कर दिया था, लेकिन रशीद के चेहरे पर पाए जाने वाले उलझन के आसार से जाहिर हो रहा था कि वो कुछ समझने से कासिर था। वो इन दोनों को बुरा भला कहता रहा, लेकिन किसी ने उसकी परवाह नहीं की। एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो जाने के बाद उन्होंने उसे हाथ लगाने की जहमत भी नहीं की। शीदे, इस तैयारी की तकमील का अंदाजा हो जाने के बाद मैंने आगे बढ़कर उसे मुखातिब किया। अगर तूने अब भी जहांगीर के बारे में जुबान नहीं खोली तो तू जिंदगी भर पछताएगा। मुझे जो मालूम था मैंने बता दिया। वो झल्लाई हुई आवाज में बोला, पता नहीं तुम कौन हो और मुझसे क्या सुनना चाहते हो। वो अपने अंजाम से हरासा और खौफजदा जरूर था, लेकिन उसके कसबल खत्म नहीं हुए थे। मैंने अव्वल खान की तरफ देखते हुए अपने दाहिने हाथ का अंगूठा फिजा में बुलंद किया। इसे अपने आदमियों से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने अपने सर को खफीफ सी जुम्बिश दी और वो चरखी पर से आई हुई रस्सी का सिरा आहिस्ता आहिस्ता खींचने लगी। रशीद के पैर फर्श से उठे तो वो बुरी तरह बुलबुलाया। इसकी टांगें आजाद थीं। वो फिजा में मुअल्लिक किसी कद आदम पुतले की तरह टांगें चला रहा था। पेट और कमर से लटकी हुई गोल आयनी प्लेटों ने उसकी टांगों की बेसाख्ता हरकत को बड़ी हद तक महदूद किया हुआ था।
ढलवान छत की एक शहतीर से बंधी हुई चरखी के सहारे उसका वजूद फर्श से ऊपर उठता चला गया। इन दोनों को बहुत अच्छी तरह मालूम था कि इन्हें अपने शिकार से क्या शुरू करना है। वो रशीद के बदन को 6-7 फुट की बुलंदी तक उठाते चले गए। फिर उन्होंने अचानक रस्सी छोड़ दी। रशीद शाह ये समझ रहा था कि उसे इजाफी बोझ के साथ लटकाकर अजियत से दो चार किया जाएगा। रस्सी का सिरा छूटते ही उसका भारी वजूद कशिश शकल के तहत तेजी से नीचे आया तो बेइख्तियार उसकी चीख निकल गई। फासला कम था और वो वजूद जरूरत से ज्यादा वजनी हो चुका था। एक तेज धमक के साथ रशीद के कदम फर्श से टकराए। इस बार वो ऐसी वहशतनाक आवाज में चीखा जैसे उसे ज़िबा कर दिया गया हो। उसने गैर इरादी तौर पर सारा झटका अपने कदमों पर लिया था, लेकिन इस झटके के नतीजे में रूनुमा होने वाली अंदरूनी तब्दीलियों ने उसे लम्हा भर के लिए भी अपने कदमों पर नहीं खड़ा रहने दिया। वो फर्श पर गिरकर बुरी तरह तड़पने और चिल्लाने लगा, जहांगीर कहाँ है? मैंने सर्द और सफाकाना लहजे में अपना सवाल दोहराया। मुझे नहीं मालूम, वो हल्के के बल चीखा। तुम दरिंदे हो, तुमने मुझे तबाह कर दिया, मैं दर्द से मर रहा हूँ। जालिमों, मेरे हाथ खोल दो, तुम्हें बार बार इसी तरह लटकाया और गिराया जाएगा। इस बार अव्वल खान ने दुरुस्त लहजे में कहा, हत्ता के लोहे की प्लेटें तुम्हारी रानों की हड्डियां और रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगी और तुम अपने कदमों पर अपना बोझ भी सहारने के काबिल नहीं रहोगे। तुम्हारी इस वक्त की तकलीफ तुम्हारे अंजाम के मुकाबले में बहुत आकीर है। अब भी बता दो कि वो कहाँ है। उसकी आंखों से खौफ के साथ बेपाया नफरत का इजहार हो रहा था। वो चीखा, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम। इसलिए मैं मेरे मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी। कमरे में शीदे की चीखों पुकार जारी थी। मैं तेजी के साथ बाहर निकलता चला गया। हमारे लिए कामयाबियों की रात साबित हुई है। दूसरी तरफ से जलाल खुश दिलाना लहजा में बता रहा था, अल्फा मारा गया। हल्का फुल्का मुकाबला होने के बाद तीनों दफातर के मालिकान हाथ आ गए। इनका सारा रिकॉर्ड भी हमारे कब्जे में है। क्या कासिम फिशरीज का मालिक भी तुम्हारी तहवील में है? मैंने पूछा। हाँ, वो अपनी एक दाश्ता के फ्लैट से हाथ आया है। वो तीनों मुसलसल मेरे स्टाफ के ऑब्जर्वेशन में थे। पैसा हो जाने के बाद इन तक पहुंचना कोई मुश्किल नहीं था। ये सुनाओ कि कासिम फिशरीज का क्या बना? जहांगीर कहाँ है? उसकी जुबान से जहांगीर का जिक्र सुनकर मेरे दिल में ठंडक सी पड़ गई। अपनी कामयाबियों के कुमार में डूब कर वो मेरे मसले को नहीं भूला था। कासिम फिशरीज से सीधा हाथ आ गया है, लेकिन वो बहुत ठीक साबित हुआ है। जहांगीर के बारे में कोई कारामद बात बताने पर आमादा नहीं है। मोबाइल फोन पर उससे बात करते हुए मैंने गैर इरादी तौर पर अव्वल खान के दफ्तर की तरफ चलना शुरू कर दिया था और वो खुद भी शीदे को अपने दोनों मातहतों के रहम करम पर छोड़कर मेरे साथ आ गया था। शायद जिस पर अपने आका की दहशत बैठी हुई है, जलाल ने अपना कयास जाहिर किया। वो रोपोश मुजरिम है, डर रहा होगा कि इसने अपनी जुबान खोली तो उसका मालिक इसे जहन्नुम हासिल कर देगा। क्या तुम्हारा इशारा सोबराज की तरफ है? मैंने चौंक कर पूछा। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मेरी मालूमात के मुताबिक इन तीनों कारोबारी इदारों में सारी सरमायाकारी उसी की है। सामने कोई भी हो, पसे पर्दा डोरियां सोबराज के हाथ में होंगी। क्या इन तीनों ने इसके बारे में कोई बात उगली है? अभी मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई। तीनों को सदफ मेंशन पहुंचाया जा रहा है। मैंने रिपोर्टें मिलते ही तुमसे राब्ता किया है। मैं इस वक्त मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों के दफ्तर में हूँ। यहाँ से निपटूंगा तो इनसे पूछ कर होगी। ये देखो तुमने कहाँ रखा है? सदफ मेंशन के अलावा स्टेशन 4 ही रह जाता है। वो जवाब देते हुए यकायक मेरे जहन में ख्याल कोंधे की तरह लपका और मैंने कदरे पुरजोश लहजे में कहा, क्या यह मुमकिन है कि तुम फिशरीज के मालिक को सदफ मेंशन के बजाय यहाँ भिजवा दो? तुम कहो तो मैं उसे जहन्नुम में भी भिजवा सकता हूँ। हल्की सी हंसी के साथ उसकी आवाज उभरी। अल्फा को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के बाद तुम इस वक्त हर बड़े आदमी के मंजूर नजर बन चुके हो। जरूरत पेश आई तो वो तुम्हारी हर बात मान लेंगे। अल्फा को तुम्हारे किसी आदमी ने मारा है, इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं था। मैंने कदरे हैरत से कहा। इस वक्त रशीद का मामला यकायक पसे पुश चला गया था। मैं दूसरों का क्रेडिट अपने सर मुड़ने का कायल नहीं हूँ। अल्फा के मामले में हम सब की तेज तरीन कामयाबी पर सब हैरान है और मैंने इसका जवाब पेश कर दिया है। इसे बेशक मेरे आदमी ने मारा, लेकिन वो तुम्हारा प्लान था। अगर तुम्हें टाम से मुलाकात की राह न सूझती तो अल्फा जैसे बुज़दिल चूहे को इसके महफूज बिल से बाहर निकालना मुश्किल था। अगर तुम मेरा नाम झंडे पर चढ़ाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोक सकता। ये बताओ कि तुम फिशरीज वाले को कब भेज रहे हो? मैंने असल मौजू की तरफ आते हुए कहा। वो सेठ कासिम के नाम से पहचाना जाता है। जब तक उसकी गिरफ्तारी का मामला रिकॉर्ड पर नहीं आता, मैं इसके बारे में अपने तौर पर फैसला कर सकता हूँ। हो सका तो मैं किसी एक पार्टी को रास्ते ही से तुम्हारी तरफ भेज देता हूँ। इसके बारे में तुम क्या सोच रहे हो? वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी बेचैनी में इजाफा होता जा रहा है। ऐसा ना हो कि जहांगीर को कोई नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाए। मैंने धीमी आवाज में कहा। इस वक्त सोबराज खतरात में घिरा हुआ है। वो किसी के सामने आने का खतरा मोल नहीं ले सकता। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि उसने कासिम के जरिए शीदे को इस्तेमाल किया होगा। तुम सही समत में सोच रहे हो। उसने मेरी तायद की। हो सकता है कि शीदा उसी के जोम में अपना दम कम दिखा रहा हो। उसे बेदस्तों पा देखकर उसका हौसला जवाब दे जाएगा।
मैं भी कासिम को तुम्हारी तरफ भिजवाने का बंदोबस्त करता हूँ। यह पूरा केस तुम्हारा है, मैं कासिम को उधार मांग रहा हूँ। काम पूरा होने के बाद इसे वापस लौटा दिया जाएगा। अब इसकी किस्मत का फैसला तुम्हारे हाथ में है। सोबराज जैसे गद्दार का साथ देने वालों के साथ हर बेरहमाना सलूक रवा होगा। फिलहाल मैं इसे भूल जाऊंगा। उधार में लिया हुआ मुजरिम पूछगछ में खर्च ना हुआ तो इसके बारे में कुछ सोचा जाएगा। उसकी यकीन दहानी पर बात खत्म होगी। इस गुफ्तगू के दौरान में हम अव्वल खान के दफ्तर के करीब पहुंच चुके थे। चीजों को हम दरमियान में छोड़ आए हैं। अव्वल खान ने अपनी दानिश में मुझे याद दिलाया, इसे कुछ देर के लिए भूल जाओ। जलाल के आदमी कुछ देर में कासिम को ले आएंगे तो दोनों से एक साथ निमट लिया जाएगा। इस वक्त तक हम तुम्हारे दफ्तर में बैठते हैं। मैंने पेशकदमी जारी रखते हुए कहा। सुल्तान शाह वहीं रह गया है, उसे भी बुला लिया जाए। फिजा में रह रहकर शीदे की चीखें उभर रही हैं। दर्द कितना ही शदीद क्यों ना हो, आदमी यूं बेसाख्ता नहीं चीखता। मेरा ख्याल है कि सुल्तान शाह इस पर काम कर रहा है। बेहतर ये है कि उसे भी बुलवा लो। कुछ देर के सुकून के बाद शीदा अपने बास को अचानक अपने सामने देखेगा तो इसका रद्द अमल ज्यादा फितरी होगा। इस झटके के लिए वक्फा देना जरूरी है। दफ्तर में पहुंचकर अव्वल खान ने इंतकाम पर किसी से बात की और सुल्तान शाह को अपने दफ्तर में बुलवाने के साथ यह हदायत भी दी कि कैदी को आर्जी तौर पर तन्हा छोड़ दिया जाए। सेठ कासिम के बारे में तुम क्या सोच रहे हो? अपने मेज पर सामने रखे हुए कागजात को समेटते हुए अव्वल खान ने सवाल किया। शीदा मेरी तवक्का से ज्यादा सख्त जान साबित न हुआ होता तो शायद मैं कासिम की तरफ ध्यान न देता, लेकिन अब्बास पर उसका सारा दारोमदार उसी की जात पर होगा। चंद मिनट बाद सुल्तान शाह भी वहीं आ गया। उसके बुशरे से खुशी फूटी पड़ रही थी। उसने आते ही फोन के बारे में सवाल किया। जब उसे यह पता चला कि वो काल जलाल की थी तो उसने मजीद कुछ सवाल नहीं किया। अव्वल खान के इस्तफसार पर उसने बताया कि रशीद इस कमरे में शदीद दर्द और अजियत में मुब्तला था और हम लोगों को मुगलजात बक रहा था। वो कोई मजलूम होता तो शायद सुल्तान शाह उसकी हर्जा सराई को दरगुजर कर देता, लेकिन ऐसा नहीं था। सुल्तान शाह ने खासी फराग दिली से उसकी मुरम्मत की, लेकिन वो फिर भी अपनी बदगोई से बाज न आया। इसने जहांगीर के बारे में कोई बात बताई? वो मुसलसल अपनी इब्तदाई कहानी पर अड़ा हुआ था। हमें घर से निकले काफी देर हो गई थी। इन लोगों को हमारी ताज़ा मुहिम के नताइज का बेचैनी से इंतजार होना चाहिए था। सुल्तान शाह की अम्मा पर मैंने घर फोन किया तो मेरी गजाला से बात हुई। उसने बताया कि इस वक्त वीरा सलमा पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गई थी और उसे अपनी ख्वाबगाह में ले गई थी और उसे फुर्सत के कुछ लम्हात मुयस्सर आ गए थे। गजाला को यह सुनकर मायूसी हुई कि रशीद के हाथ आ जाने के बावजूद हम लोग जहांगीर का कोई सुराग पाने में नाकाम रहे थे। सलमा ये आस लगाए बैठी थी कि रशीद के हाथ आते ही हमें जहांगीर का पता मिल जाएगा और वो किस्सा तेजी से निमट जाएगा। मैंने वापसी में ताखीर के इम्कान का जिक्र करने के बाद बात खत्म कर दी और सुल्तान शाह मुतमईन नजर आने लगा। इस वक्त इसका रवैया किसी ऐसी उम्र सीधा खातून जैसा था जो घर से बाहर गए हुए हर फर्द के बारे में उसकी वापसी तक मुसलसल फिक्रमंद रहना अपना फर्ज समझती हो। जलाल की तरफ से पैगाम मिला कि वो अपने आदमियों से राब्ता करने में कामयाब हो गया था। वो कासिम समेत स्टेशन 4 की तरफ आ रहे थे।